Hello everyone, welcome you all on Anthropology Inside classes. And today's lecture is about late and extra Harappan culture and also about megalithic culture of India. So let's start. Extra Harappan, Chalcolithic and Megalithic culture part 2. In first part, I have already discussed about late and post Harappan Chalcolithic and also some extra Harappan Chalcolithic cultures. And in this lecture, I will discuss about late extra Harappan Chalcolithic and some megalithic culture of India. Good evening, Pranjal. Malwa and Jorwe cultures of extra Harappan Chalcolithic. The Malwa culture means already I have discussed Ahar culture and Kaitha culture, and now it is Malwa culture. And this Malwa culture is the most predominant Chalcolithic culture of central India. Its distribution is found in Madhya Pradesh and Maharashtra. It was first identified in the excavations at Maheshwar on river Narmada, and Maheshwar is means ancient site in Madhya Pradesh, and it was identified with the ancient Mahismati of Purans. तो पुराण में इसका नाम महिष्मति है और जो अभी महेश्वर के नाम से जाना जाता है और इस महेश्वर साइट में सबसे पहले मालवा कल्चर एक्सकवेट किया गया आइडेंटिफाई किया गया एंड द अदर साइट्स ऑफ मालवा कल्चर आर नावदतोली नागड़ा कैथा ईरान प्रकाश इनामगांव एंड दयामबाद in which the Maheshwar, Nandatoli, Nagda, Iran and Kaitha, these are all in Madhya Pradesh, while Prakash, Inamgaon and Dayambad belongs to Maharashtra. The dates belong to this culture are 1900 to 1400 BC and lying to the east of Banas Valley and Aravali Hills. Malwa region forms a distinct geographical unit forming a link between Indo-Gangetic Plain and Peninsular region. Two rivers, Chambal and Narmada, go across this region, Malwa region. And here, both small and large villages were found by the archaeologists. The large villages include Navdatoli, Nagda and Iran, जो कि मध्य प्रदेश की साइट्स हैं जिसमें कि नवदोतुली बीइंग द लार्जेस्ट मीन्स नवदोतुली जो है इन सभी में लार्जेस्ट साइट है Navdatoli में there are two parts of occupation found at Navdatoli enclosed by a fortification wall and perhaps in historical times the center shifted to Maheshwar. तो महेश्वर जो एक साइट है मध्य प्रदेश की वहां पर सेंटर शिफ्ट हो गया होगा ऐसा एज्यूम किया जाता है देयर आर 4 phases फाउंड इन Navdatoli. In all 4 phases the huts are both round huts and rectangular houses means circular या rounded huts और rectangular houses पाए गए सभी phases में pit dwellings जो है फर्स्ट फेज में ही पाई गई मीन्स इससे बता मीन्स अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले पिट ड्वेलिंग्स बनती रही होंगी वो जमीन में कुछ होल मतलब गड्ढा करके कोई पिट डिग करके उसमें करते रहे होंगे और बाद में उन्होंने राउंड एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाना शुरू किया यूजली फाउंड राउंड हट्स वेर फाउंड इन क्लस्टर्स ऑफ 2, 3, 4 तो पिट ड्वेलिंग ज्यादातर हम लोग नियोलिथिक कल्चर में पढ़ी है और उसके बाद उन्होंने इस तरह के हाउसेस बनाए ड्यूरिंग द post Harappan and extra Harappan Chalcolithic, they usually found round huts are found in clusters of 2, 3 or 4. तो round huts दो, 3 या 4 के cluster में पाए जाते हैं. Good evening, Apu. The total extent of the settlement at Navdatoli was about 7 hectares, and there were a number of post holes, possibly used for fastening domestic animals at night. तो ऐसा माना जाता है कि पोस्ट होल्स में रात के समय
डोमेस्टिक एनिमल्स को वो बांधा करते रहे होंगे. A burnt house recorded from later phase. Storage jars and squarish pots have been found inside this house. Multi-room structures at Navdatoli are particularly evident from a house in phase 2, which is marked by a rows of post holes, of which a double set of post holes form the back wall. तो इस तरह के कुछ structures जो है वहाँ पर मिले नवदतोली में. कुछ एक large burnt red floor was also found. It has a squarish pit in the middle with the charred wooden post on four corners to support the canopy. Two high neck pots were also found. तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स pottery, two high neck pots मिलते हैं और burnt red floor मिलता है, multi room structures मिलते हैं और rounded and means rectangular houses मिलते हैं. Then another site is Nagada, and Nagada site में नगड़ा या नागदा कह सकते हैं. A mud wall has been recorded, a feature also seen at Iran. तो ईरान जो दूसरी साइट है नवदोतली, नागड़ा और ईरान, ये सारी मध्य प्रदेश की साइट्स, इनमें भी कुछ मड वॉल जैसा स्ट्रक्चर मिला. And houses seem to have been laid out in rows along the road and by the lanes. तो rows में यहाँ पर houses थे, मीन्स एक रो में इस तरह कुछ अरेंजमेंट रहा होगा. एंड मड ब्रिक्स एंड फायर ब्रिक्स आर यूज्ड इन नागड़ा. इट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ नागड़ा कि यहाँ पर ही फायर्ड ब्रिक्स, जो मड ब्रिक्स होते थे वो फायर्ड ब्रिक्स भी पाए गए नागड़ा में, जबकि अदर मालवा साइट्स में ये इस तरह के ब्रिक्स नहीं मिले. Phase 2 shows multi-room houses with the chulha, means that is hearth. यहाँ पर 4 armed hearth मिलता है, chulha, and floor where hard pebbled floor were also found. An extensive burnt red coal has been found with the square spit and with the charred bones. Storage jars and square spots have been found inside the house. तो इस तरह ये नागड़ा के कुछ फीचर्स हैं. देन मालवा कल्चर स्प्रेड इनटू महाराष्ट्र बाय 1700 BC. तो अभी तक हम मध्य प्रदेश की साइट्स पढ़ रहे थे, ईरान, नवदोतोली, नागदा. नाउ इट इज इन महाराष्ट्र, मीन्स जो दूसरी साइट्स महाराष्ट्र से भी मालवा कल्चर को पाया गया, मीन्स आइडेंटिफाई किया गया. और कुछ एक्सटेंसिव साइट्स हैं. हियर आर सम एक्सटेंसिव साइट्स फ्रॉम द मालवा चालकोलिथिक कल्चर in Maharashtra. Number 1 is Prakash in Tapi Valley. Second is Dayambad in Godavari Valley, and third is Inam Gaon in Bhima Valley. So these 3 sites belong to Maharashtra. Malwa culture sites हैं ये. All these are Malwa culture Chalcolithic culture sites from Maharashtra. And here craftsman houses and religious structures are found. House number 32, 33 and 54 formed one complex located in an enclosure wall. तो ये दयमबाद जो पाया गया गोदावरी वैली में, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ फीचर्स हैं जो चालकोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं. और इसमें 32 मीन्स 32, 33 और 54 नंबर के जो हाउस थे वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और लोकेटेड इन एनक्लोजर वॉल. तो कोई एक वॉल रही होगी जिसके अंदर ये सारे लोकेटेड रहे होंगे. एंड लार्ज फायर पिट्स वेयर फाउंड इन हाउस नंबर 54 आइडेंटिफाइड एज सैक्रिफिशियल आल्टर्स. मीन्स यहाँ पर कुछ वो हवन वन करते रहे होंगे या कुछ जो भी मीन्स उस समय जो मीन्स करते रहे होंगे वैदिक पीरियड के जस्ट पहले. तो इस तरह का कुछ यहाँ पर मिला है जो कि रिलीजियस पर्पज से जुड़ा लगता है. Then 2 armed chulhas were also identified. तो दयामबाद में ये सारे कुछ means evidences मिले. Then Inam Gaon in Bhima Valley, here 20 houses have been identified, and they were large rectangular structures with a low partition wall in the middle. Inside the room were low mud walls and large fire pits, and pits was meant for storage. Circular pit dwellings also existed. Carbonized grains of wheat, barley, jawar, legumes, rice, oilseeds and fruits are found. Means different ecological setting से अलग अलग कुछ evidences मिले इस तरह के wheat, barley और ये, क्योंकि ये एक तरह के means environment में ये सारे नहीं grow कर सकते. तो कुछ लगा होगा कि वहां पर कुछ डिफरेंट मीन्स साइड से इन्होंने कुछ कलेक्ट किया होगा या ट्रेड हुआ होगा जहां से बाहर से भी कुछ चीजें यहाँ पर
आई होंगी इस तरह के कुछ जो मीन्स प्लांट टाइप्स दिखते हैं यहाँ पर फूड्स के और ग्रेन्स के, वो इस तरह के कुछ कार्बोनाइज्ड ग्रेन्स यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें कि वीट, बार्ले, ज्वार, राइस, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं। दे ऑल्सो ईट एनिमल फ्लेश, तो एनिमल की कुछ बोन्स या कुछ इस तरह के मिले होंगे जिसके आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि वो एनिमल फ्लेश भी खाते थे। And then buff and cream slipwear, white painted black and red wear, horse red gray wear and handmade means ये सारे different type of pottery types वहां पर मिलते हैं, जिसमें कि buff cream slipped wear जो कि मिला, then white painted black and red wear। तो ये जो black and red wear है, red and gray wear, ये सारे कुछ मालवा कल्चर में इस तरह की एक साथ 2-3 वेराइटी ऑफ पॉटरी स्टाइल यहाँ पर मिल रही है। एंड हैंडमेड स्टोरेज जार्स आर आल्सो फाउंड, पॉटरी किल्न इज फाउंड, ब्लेड टूल्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स, बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, स्टोन रबर्स, मुलर स्पंज, all these are found, means different type of tools made on metals, and some ornaments are found and some grinding tools जिसमें कि मुलर, स्क्वांस, ये सब भी मिल रहे हैं। And this shows a mixed subsistence practices. टेराकोटा फीमेल फिगराइंस ऑलरेडी जैसा कि बाकी साइड्स में भी थे, तो टेराकोटा फीमेल फिगराइंस मिलती हैं जो कि पूरे हड़प्पन कल्चर में ये सारे फीचर्स हैं। और सम पेयर्स आल्सो डिपिक्ट्स मेल फिगर्स, तो ज्यादातर फीमेल फिगराइंस मिलती हैं, पर यहाँ पर कुछ मेल फिगर्स भी मिल रहे हैं। टेराकोटा बुल फिगराइंस बोथ एज टॉय एंड एज रिलीजियस सिंबल, तो कुछ रिलीजियस सिंबल के रूप में बुल फिगराइन और कुछ टॉयज के रूप में शो करता है एट इनाम गांव। देन कम्स द जॉरवे कल्चर, तो जो अभी महाराष्ट्र की साइड्स थी वही जॉरवे कल्चर में आगे मीन्स ये आगे इवॉल्व होकर जॉरवे कल्चर बनता है इन महाराष्ट्र, जिसमें कि प्रकाश, दयमवाद और इनाम गांव आता है। और यही तीनों साइड्स जॉरवे कल्चर की भी साइड्स है महाराष्ट्र में। And most important and characteristic Chalcolithic culture of Maharashtra, Jarve culture, named after the type site of Jarve in Ahmednagar district, Gujarat, and it was discovered in 1950. तो जारवे इज अ साइट इन महाराष्ट्र एंड ऑन द नेम ऑफ दिस साइट, इसको कल्चर का नाम जॉरवे कल्चर पड़ा। और जो बेसिक 3 साइट्स है, मेन साइट्स हैं, दिस आर प्रकाश, दयमवाद एंड Inamga. Over 200 sites of this culture have been documented so far, and 2 in excavated sites जो इसमें की हैं वो extensively excavated sites are Inamgaon and Dayambad. High concentration of sites in the Tapi Valley has been put down to occurrence of tracts of high fertile black cotton soil in the region. तो यहाँ पर तापी वैली में नंबर ऑफ साइट्स का ज्यादा पाया जाना, यहाँ पर जो फर्टाइल सॉइल की वजह से ऐसा माना जाता है। और जबकि भीमा वैली में कम सेटलमेंट पैटर्न्स मिलते हैं, जिसमें क्योंकि यहाँ का जो ये है मीन्स क्लाइमेट है वो ड्राई और एरिड था, तो इस वजह से यहाँ पर एरिया जो एरिड है, फर्टाइल लैंड नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर कम सेटलमेंट्स मिलते हैं। धवालीकर in 1997 classifies all the Jorve sites as regional centers, namely villages, hamlets, farmsteads and camps. तो इसमें उन्होंने बांट दिया उनके आधार पर, जो कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स रहे होंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहे होंगे उस तरह उनके आधार पर, और जैसे जैसे छोटे स्ट्रक्चर उसके आधार पर उन्होंने तमाम रीजनल सेंटर्स में बांट दिया। रीजनल सेंटर्स ऑफ प्रकाश, दयमवाद, इनामगांव आर एक्सटेंसिव इन एरिया एंड वेरी रिच with a very rich material culture. The work in Inamgaon was discovery in Chalcolithic studies. Means then Inamgaon. इनामगांव में ग्रैनरी मिलता है एंड डाइवर्जन चैनल्स मिलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के जो कि लगते हैं कि these belong to public architecture, मीन्स ये पब्लिक बिल्डिंग्स रही होंगी। जो लार्ज ग्रैनरी जैसे कि हड़प्पन साइड से मिला था, और कुछ डाइवर्जन चैनल्स है। ओवर 130 हाउसेस बिलोंग टू बोथ अर्ली एंड लेट जारवे फेजेस। इनाम गांव में 130 कुछ हाउसेस मिले, एंड अर्ली जारवे हाउसेस वेर रेक्टेंगुलर इन प्लान while the late Jarve houses were circular। जबकि दूसरी साइड जो ऑलरेडी हम पढ़े मालवा कल्चर में, उसमें अर्ली सर्कुलर थे, बाद में रेक्टेंगुलर मिले, पर यहाँ पर सर्कुलर जो है वो लेट जारवे में मिलते हैं, जबकि अर्ली जारवे में रेक्टेंगुलर मिलते हैं।
And Dhavalkar relates the changing housing pattern with weak economic condition due to arid and dry climate in late Jarve. तो ऐसा माना जाता है, धवालिकर ऐसा एज्यूम करते हैं कि शायद लेट फेज की समय उनकी इकोनॉमिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं रही होगी और उसकी वजह से उन्होंने सर्कुलर हाउसेस बनाए और पहले वो बड़े हाउसेस में रहा करते थे। तो इस तरह जो रेक्टेंगुलर प्लान से सर्कुलर हाउसेस की तरफ जो चेंज शो करता है हाउसिंग में, वो इस वजह से रहा होगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमी वीक हुई और वीक इकोनॉमी हुई ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस और इस तरह उनमें वीक इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट की वजह से लेट जारवे में सर्कुलर हट्स दिखाई देती हैं ड्यू टू ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट। These houses had chulhas and storage bins, and large number of Jarve sites can be classified as villages like Sonagaon, Chandoli, Apegaon and Balki. तो ये भी कुछ साइट्स हैं जो मेन एक्सटेंसिव साइट्स तो ये थी, पर इसके अलावा भी छोटी साइट्स हैं जिसमें कि ये सब आते हैं और इनमें भी कुछ फ्यू हाउस होल्ड्स के साथ ये विलेज साइट्स के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ जारवे साइट्स, हाँ, the principal crops were barley, wheat, jowar, rice, ragi, green pea, grass pea, lentil and green and black gram. So these are the several types of crops which were grown in the Jarve at Inamgaon. Then the painted wheel made and well fired pottery is found. 4 pottery kilns and spouted jar carinated bowls are found. Other forms are storage jars, basins, cups, etc. Urn burials of child and adults are found. One 4-legged urn burial of adult at Inam Gaon means पहले डायरेक्ट फ्लोर के नीचे बरी कर दिया करते थे, पर यहाँ पर अर्न ब्यूरियल मिलता है मीन्स पहले एक कुछ मेटल का केस बनाकर और उसके अंदर वो बॉडी को रखकर फिर वो बरी करते रहे होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं। Then comes to megalithic culture. Megalithic culture, as its name shows, that mega means large. Mega means large and lithic means stone. Means large stone culture. तो ये एक वो कल्चर था जहाँ पर हमें लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं और स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया, और जिसकी वजह से इसको मेगालिथिक कल्चर कहा गया। बाकी जो इसकी जो साइट्स हैं जिसमें कि यूपी की कुछ साइट्स हैं, राजस्थान की कुछ साइट्स हैं, वहां पर हमको मेगालिथिक स्टोन टॉम्स नहीं मिलते हैं। ओनली एट साउथ इंडिया वी गेट दिस मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स एंड दैट इज व्हाई दिस होल आयरन एज culture is known as megalithic culture. Means only in case of हम साउथ इंडियन जो साइट्स हैं आयरन एज की, उनके केस में ही हम मेगालिथिक साइट्स का नाम यूज करते हैं। बाकी जो साइट्स बिलोंग करती हैं दिस आयरन एज, they are not known as megalithic sites. But क्योंकि आयरन एज को ही कई बार हम मेगालिथिक कल्चर मीन्स बोल देते हैं, तो इस तरह सारे इसी में आ जाते हैं। बट मेनली जो साइट्स मेगालिथिक साइट्स हैं, दे आर ओनली फाउंड इन साउथ इंडिया। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया, माना जाता है कि ड्यूरिंग द मेगालिथिक कल्चर्स और आयरन एज जो गैंगेटिक रीजन में सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। Means large number of people colonized along the गंगा यमुना means जो घाटी थी उनकी गंगा यमुना वैली, वहां पर बहुत नंबर ऑफ मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो माइग्रेट किए फ्रॉम जो इंडस वैली थी वहां से, क्योंकि वहां क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या और भी वजहों से वहां से लोग माइग्रेट किए और वो गंगा वैली को मीन्स आकर वहां पर सेटल किए। और इस तरह सेकेंड अर्बनाइजेशन माना जाता है कि वो गैंगेटिक रीजन में ड्यूरिंग आयरन एज हुआ। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस, लार्ज पॉपुलेशन मूव टुवर्ड्स द गैंगेटिक गंगा यमुना वैली। Iron is started in Gangetic Valley, mostly on western flanks west of Allahabad after iron users settled this valley. तो iron users माना जाता है कि पहले यहाँ आयरन नहीं रहा होगा, वहां से जब लोग आए वहां से वेस्ट ऑफ इंडस से, जहाँ पे इंडस वैली की सारी साइट्स थी, वहां से लोग जब माइग्रेट करके यहाँ आए तो अपने साथ आयरन भी ले आए और इस तरह आयरन भी आया यहाँ पर
और लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आ गए, तो ये जो वैली थी वो अर्बनाइज्ड हो गई, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ऑक्युपाइड दिस वैल्यू एंड दिस लेड टू द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन होता है हड़प्पन वैली मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय, जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन था वहां पर, और सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है ड्यूरिंग दिस आयरन एज एट द गंगेटिक वैली। तो गंगेटिक रीजन में सेकेंड अर्बनाइजेशन माना जाता है, जबकि साउथ इंडियन साइड्स में हम सेकेंड अर्बनाइजेशन नहीं मानते, ओनली एट गंगेटिक रीजन, क्योंकि वहां से आने के बाद इन लोगों ने यहीं पर आकर इस पूरे रीजन को ऑक्युपाई किया। तो इस तरह नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर इंक्रीज किए और एक नया जो है पॉपुलेशन आयरन यूजर्स का और एक आयरन एज की यहाँ पर शुरुआत हुई। तो नंबर ऑफ सीसावल ग्रुप ऑफ साइट्स, जो सीसावल साइट्स हमने पढ़ी थी इसके पहले, सीसावल्डी हरियाणा में एक साइट है, ईस्ट पंजाब हरियाणा में, वो इंक्रीज की यहाँ पर इंक्रीज इन द ईस्ट पंजाब एंड हरियाणा। सीसावल फेस सो मेगालिथिक कल्चर, Bhagwanpura in Haryana, Daulatpur in Haryana, and Hulas in western UP. In their phase 2, not in phase 1, phase 2, they show iron implements with PGW, that is painted greyware. तो यहाँ पर एक नई पॉटरी शो करते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मेगालिथिक कल्चर में, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी फॉर्म है दैट इज पेंटेड ग्रेवेयर। तो सौराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, राजस्थान, दीज आर इम्पोर्टेंट आयरन एज साइट्स। तो इंडिया में जो मेगालिथिक या आयरन एज साइट्स कहा जाएगा यहाँ पर, उसमें सौराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। देन नो जोहपुरा एंड सरदारगढ़ इन राजस्थान, एंड खलना, बटेश्वरा, अहिछत्रा, हस्तिनापुर, अल्लाहपुर, Atranji Khera, Jakhare, and Mathura in UP. These are the Iron Age sites from UP. तो यूपी की कुछ साइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, सम ऑफ द वेल नोन एक्सकेवेटेड साइट, जो ये पूरा गंगेटिक वैली है, इसमें ये सारी साइट्स पाई गई। एंड दीज थिन फैब्रिक ग्रे फायर्ड सिरेमिक्स, जो पेंटेड ग्रे वेयर है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये थिन फैब्रिक होते हैं, ग्रे फायर्ड सिरेमिक्स होते हैं, और include straight-sided bowls, dishes, lotas with spiral, sigma, strokes, swastiks, painting. तो इनमें इस तरह के पेंट बना करते थे in black color. These are means paintings are made in black color. Black color में यहाँ पर कुछ पाए गए इस तरह के फीचर्स पेंटेड ग्रेवेयर में। वेस्टर्न यूपी शोज अ प्री पेंटेड ग्रेवेयर, मीन्स पहले वेस्टर्न यूपी में मीन्स ब्लैक एंड रेड वेयर पाया गया, जो माना जाता है कि पीजीडब्ल्यू आने के पहले का पॉटरी स्टाइल है ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसमें कि इन्वर्टेड फायरिंग करने से जो मीन्स बाहर का सरफेस होता है पॉट का वो काला पड़ जाता है, मतलब बाहर का रेड हो जाता है और इनर जो सरफेस होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो मान लीजिए ये एक पॉट है और इस पॉट को यहाँ पर फायर है, तो फायर पर इन्वर्टेड फायरिंग की गई, इस पॉट को उल्टा इस पे रखकर इसको मींस बर्न किया गया पकाने के लिए, और जिससे कि अंदर जो हीट गई उससे ये अंदर की साइड में ब्लैक हो गया और आउटर सरफेस इसका रेड हो गया। ये एक टाइप मींस इट इज अ टेक्निक, इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक which was applied during this iron age. Some of the sites of India, like यूपी में कुछ जगह जहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी मिलती है, और साउथ इंडिया में भी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, वहां पर भी इस तरह की टेक्निक अप्लाई किए होंगे। और पेंटेड ग्रे वेयर वो जो पॉटरी है उसमें जो सरफेस है मीन्स पॉटरी का वो ग्रे कलर का दिखाई देता है, मीन्स उसको बर्न करते हैं तो वो कुछ ग्रे कलर ले लेता है, उसको हम पेंटेड ग्रे वेयर करते हैं, मीन इट लुक्स लाइक इट इज पेंटेड विद द ग्रे कलर। तो ये इसलिए इसको पेंटेड ग्रे वेयर कहा गया, बट हियर द मोटिव्स आर मेड इन ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में कुछ स्पायरल्स या कोई भी डिजाइन बनाई जाती है और वो ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, एंड हियर इट इज ब्लैक एंड रेड वेयर। Most PGW sites show wattle and daub huts. ये wattle and daub कुछ घास हो या इस तरह की चीजों से बनाए जाते थे, तो इस तरह के हट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। Circular pits at early phases was followed by rectangular houses.
पहले सर्कुलर पिट्स फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस यहाँ पर हैं. इन लेटर फेजेस वाज फाउंड एट भगवानपुरा साइट. तो भगवानपुरा साइट में यहाँ पर ये इस तरह का कुछ दिखता है, हरियाणा की एक साइट है. Then more than 300 sites found from PGW is painted grey ware जो कल्चर है ये पूरा मेगालिथिक आयरन एज का. यहाँ पर 300 से अधिक साइट्स मिलती हैं जहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर यूज किया जाता था. एंड राइस, व्हीट, बार्ले मेन क्रॉप्स and sheep, cattle, buffalo are the main domesticated species, animal species. Then bone objects and beads are found in very large number. तो ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स ऑर्नामेंट्स थे या कुछ भी टूल्स वो ज्यादातर बोन में मिले और बीड्स वहां पर बहुत सारी मिली. मीन्स और कुछ एक आध लैपिस लाजुली जो स्टोन उस पे मिलता है. बीड्स, आयरन इम्प्लीमेंट्स वेर फाउंड इन लार्ज नंबर फ्रॉम जोधपुरा साइट, इंक्लूडिंग स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स, टैंक्स, ब्लेड, सिकल्स एंड नाइफ्स एक्सेट्रा. तो इस तरह जो है तमाम मीन्स इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आयरन में बने हुए. फ्रॉम कौशाम्बी ऑनवर्ड्स आयरन गेट्स merely grafted with black and red ware. तो यहाँ पर जितनी भी ये साइट्स हैं कौशाम्बी और ये उत्तर प्रदेश वाली, इन सब में ब्लैक एंड रेड वेयर मोस्टली मिलता है. आयरन एट कौशाम्बी, चीरंड जो बिहार में है, महिसादल एंड पांडु राजा ढाबी occurs around 800 BC. Sharply carinated vessels, more common type during this period. At Bhagwanpura, Kurukshetra district of Haryana, an overlap between late Harappan and painted grey ware cultures found. Large houses and fired bricks are used in Vedic artists. तो लार्ज हाउसेस मिले यहाँ पर और फायर्ड ब्रिक्स मिलते हैं जो एज्यूम किया था कि वैदिक आर्टिस्ट में यूज किए जाते रहे होंगे. Recently, Vinay Kumar Gupta suggested that Mathura as the largest PGW site. मथुरा को लार्जेस्ट पीजीडब्ल्यू साइट माना गया अकॉर्डिंग टू विनय कुमार गुप्ता एन आर्कियोलॉजिस्ट. एंड अराउंड 375 हेक्टेयर एरिया में ये पीजीडब्ल्यू साइट मथुरा में पाई गई. एंड एमंग द लार्जेस्ट साइट is also the recently excavated अही छत्रा जो यूपी की दूसरी साइट है. यहाँ पर 40 हेक्टेयर का एरिया जो है वो पीजीडब्ल्यू साइट मानी गई. And along with the evidences of easy construction of the fortification, which goes back to PGW levels. Towards the end of this period, many of the PGW settlements grew into large towns and cities of the northern black ware polish period. तो लास्ट में कुछ नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर जो वैदिक पीरियड के समय एक नई पोर्ट्री स्टाइल डेवलप हो जाती है. मीन्स आयरन एज के जस्ट बाद मगध एम्पायर के समय इस तरह के कुछ नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर मीन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी एनबीपी स्टार्ट हो जाता है. एनबीपीडब्ल्यू कहते हैं इसको. वेस्ट ऑफ इंडस आयरन एज. तो जो इंडस वैली के वेस्ट में जो आयरन एज थी वो सबसे पहले जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेहरगढ़ जो एक साइट है बलूचिस्तान में वहां पर प्री हड़प्पन के कुछ फीचर्स मिले थे. और ये पीराक एक साइट है वहीं पर जहां पर आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं. तो अर्लीस्ट आयरन जो हमको मिलते हैं वेस्ट ऑफ इंडस से वो पीराक से मिलते हैं जो कि बलूचिस्तान में ही एक रीजन है. Around 1370 to 1340 BC, and first time barley and rice cultivation was found in these sites. Terracotta figurines and mud brick houses were also found. तो ये जो क्या कहते हैं वेस्ट इंडिया मीन्स इंडस वैली के वेस्ट से जो साइट जहाँ पर ऑलरेडी प्री हड़प्पन और क्योंकि हड़प्पन मेच्योर हड़प्पन आते आते ये जो मेहरगढ़ था वो डिक्लाइन कर गया था यहाँ पे कल्चर और ये मेच्योर हड़प्पन को नहीं पा पाया था. लेकिन यहाँ पर पीरक जो साइट है वहां पर आयरन हमको मिलता है. और यही कुछ अर्ली साइट्स है यहाँ से. फिर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडस में गांधार ग्रेव साइट्स जो कि कुछ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स शो करती हैं. ये अफगानिस्तान एरिया में आता है. एंड शो द आयरन इम्प्लीमेंट्स. यहाँ पर भी आयरन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. Here is a picture of painted grey ware and black and red ware. पेंटेड ग्रे वेयर इस तरह कुछ ग्रे पॉटरी दिखाई देती थी जिसमें ब्लैक कलर की कुछ डिजाइन्स बनाई जाती थी.
Here some fragments of painted grey ware are found from Panipat, Haryana and Hastinapur, UP. तो ये कुछ पेंटेड ग्रेवेयर के फ्रैगमेंट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और ये पेंटेड ग्रेवेयर, और ये है ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि अंदर से देखिए यहाँ पर काला है और बाहर से रेड है, तो ये इसी को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। तो जो भी आयरन एज की मोस्ट ऑफ द साइट्स हैं उसमें यही दो वेराइटी हमको मिलती है, पेंटेड ग्रे वेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर। Then comes to southern zone. The time period of southern zone means megalithic culture is 800 to 500 BC. बहुत मीन्स लेट है ये बाकी अदर साइड से। सम सेम टाइम एंड कोएबल विद द वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी के टाइम से ये मैच करता है। आयरन एज टिल टुडे इन साउथ इंडिया इज नोन फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वेराइटी ऑफ बरियल्स एंड देयर अकम्पनिंग ग्रेव गुड्स लाइक गंधार ग्रेव कल्चर। तो गंधार ग्रेव कल्चर की तरह ही यहाँ पर जो बरियल साइट्स थी वहां से ही हमको मीन्स साउथ इंडिया की जो आयरन एज साइट्स है वहां से बिलोंग करती हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज मेगालिथिक कल्चर। इनको हम मेगालिथिक कल्चर कहते हैं बिकॉज ऑन दीज बरियल साइट्स वी गेट सम लार्ज स्टोन्स जो मॉन्यूमेंट्स के रूप में, मीन्स वहां पर पहले बरी किया गया और उसके बाद ऊपर से स्टोन्स रख दी गई और उसी को मेगालिथिक कल्चर का नाम दिया गया। Due to the arrangement of large stone around these graves, this culture is known as megalithic culture. According to Mohanty and Selva Kumar, there are 2,200 megalithic sites in South India alone. तो साउथ इंडिया में अकेले 2200 मेगालिथिक साइट्स मिली। एंड इन कर्नाटका सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स that have been excavated are T Narsingpur, Jadigan Jagdana Hali, Hallur, Chandravalli, Brahmagiri and Maski. So these are the some important sites from Karnataka in South India. Then types of megalithics from India. इंडिया में जो मेगालिथ्स मिले हैं उसमें मेनहिर आता है। ये these are the types of megaliths. मेनहिर्स है, रॉक कट बरियल है, चैम्बर टॉम, डोलमेन, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल्स, एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स। तो कुछ ह्यूमन फिगर्स मिले हैं, तो इस तरह के फॉर्म्स में मिले हैं। मेगालिथिक मेमोरियल स्टोन्स आल्सो फाउंड इन छोटा नागपुर एंड पटकाल रेंजेस। तो साउथ इंडिया के अलावा जो दूसरे रीजन्स में कहीं अगर मेगालिथिक मेमोरियल स्टोन्स मिलते हैं तो वो छोटा नागपुर पटकाल रीजन्स में मिलते हैं। और तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की साइड्स में भी हमको मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें कि बस्तर उस्तर रीजन में भी कुछ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। देन बरियल्स फ्रॉम डेक्कन मेगालिथिक, उनके कुछ फीचर्स हैं जिसमें कि लार्ज अर्न्स विद बॉडी इनसाइड देम, ये पाया गया। मींस अर्न्स होते थे बरी करने के पहले, कुछ केसेस मेटल केसेस में वो रखते थे और फिर उसके अंदर बॉडी रखते थे वो। और इसको रखने के लिए शायद वो पहले पिट बनाते रहेंगे लैंड में, उन्होंने पिट बनाई। तो these urns were kept with the grave good in the pit, and the pit after covering marked by stone circular demarcation of stone. तो यहाँ पर एक पिट बना दी और यहाँ पर स्टोन्स रख दिए। तो इस तरह का कुछ वो मेगालिथिक जो फीचर्स मिले हैं, लार्ज अर्न्स विद द बॉडी, और ये अर्न में ही यहाँ पर बॉडी रख दी गई, बाहर इस तरह के स्टोन्स का अरेंजमेंट मिलता है। सिस्ट मिलते हैं मेड ऑफ स्लैब ऑफ स्टोन्स एंड मे बी कवर्ड विद सिमिलर फ्लैट स्टोन। कुछ स्टोन्स रखे हैं और इसी को सिमिलर स्टोन से कुछ कवर कर दिया गया। लेग्ड अर्न्स मिलते हैं, सार्कोफाजी यूज्ड टू एनकेस body before burial, and sometimes bodies were kept in chambers cut out in laterite floor. तो लेटराइट फ्लोर में कुछ चैम्बर्स बनाकर भी वहां पर बॉडीज रखते थे। तो इस तरह की कुछ फीचर्स हमको डेक्कन मेगालिथिक से मिलते हैं। ऑल साइड्स ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर, यहाँ पे साउदर्न जोन में सभी में ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी मिल रही है। एंड इंक्लूड्स द कैरिनेटेड वेसल्स, बाउल्स विद पेडस्टल्स, स्पाउटेड डिशेस, कॉनिकल शेप। ज्यादातर पॉटरी की जो स्टाइल है और शेप है और वेराइटी है वो ज्यादातर मिलती है बाकी अदर साइड से। आयरन इम्प्लीमेंट्स इंक्लूड द एक्सेस, हार्पून, सिकल्स, स्पीयरहेड्स, एरोहेड्स, लैम्प्स एक्सेट्रा, and various ornaments of horse made on iron also found. Then different cultural materials show new population moved this place from west.
तो एक कल्चरल मटेरियल में जो वैरायटी ऑफ कल्चर मटेरियल से शो करता है कि शायद बाहर से कुछ लोग मूव करके इस प्लेस में आए होंगे और इससे यहाँ पर जो कल्चरल वैरायटी वो दिखाई देती है। वेस्ट एशिया डिडंट शो एनी सच एविडेंसेस ऑफ आयरन। कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ अरेबिया, माना जाता है कि साउथ अरेबिया से लोग यहाँ पर आए होंगे। शो द सार्कोपेजियन स्क्रिप्ट, तो साउथ अरेबिया में, क्योंकि वहां पर लिवांट जो वैली है और साउथ अरेबिया में हमको इस तरह के कुछ फीचर सार्कोफेजी और सिस्ट क्रेब्स के दिखते हैं, तो माना जाता है कि जो सी रूट से वो आए होंगे, मीन्स क्या कहते हैं यहाँ पर साउथ इंडिया में सी रूट के थ्रू आकर और वहां के फीचर्स फिर यहाँ पर मिक्स हो गए या डिफ्यूज हो गए। So land route to Arab to South India also includes Punjab, Haryana with iron belonging to entirely different cultural features. It shows that Arab people entered the South India through the sea routes. South India do not show any second urbanization. तो Gangetic Valley में हमको second urbanization मिलता है, but here in case of South India, no second urbanization is found. Isolated gypsy-like tented colonies for breeding and grazing horses for trade purpose with Middle Ganga Valley. तो इस तरह मिडिल गंगा वैली के साथ ये ट्रेड करते रहे होंगे और इसमें हॉर्सेस जो है यूज करते रहे होंगे। तो कुछ जिप्सी टेंटेड कॉलोनीज मिली हैं जिसमें कि वो शायद हॉर्स को उसके ब्रीडिंग और ग्रेजिंग पर्पस के लिए उन कॉलोनीज को यूज करते रहे होंगे और जो कि मिडिल गंगा वैली से वो ट्रेड पर्पस के लिए करते थे। Here are some megalithic monuments. डोलमेन ये एक टाइप है जिसमें कि नीचे छोटे छोटे स्टोन्स रख देते हैं और ऊपर से एक बिग स्टोन्स को कवर करता है, तो ये इट्स अ टाइप ऑफ मेगालिथ डोलमेन। देन ब्रह्मगिरी कर्नाटका में एक मेगालिथिक साइट है, जैसा कि जमीन पर एक पिट खोद कर मीन्स उसमें अन्न रख देते हैं, इस अन्न के अंदर डेड बॉडी रखकर और उसके फिर चारों ओर सर्कुलर अरेंजमेंट में स्टोन्स को अरेंज कर दिया जाता है, तो ये भी एक टाइप है। एंड कुटाकुल्लू केरला में ये मिला है कि एक बिग ये लेग स्ट्रक्चर है यहाँ पर और ऊपर से एक कवरिंग इसको एक मेगालिथ से कवर कर दिया गया है। तो जितने भी लार्ज स्टोन से स्ट्रक्चर्स को कवर कर दिया गया है या इस तरह का कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट मिलता है तो ये शो करता है कि इट्स अ मेगालिथिक साइट। Here is a map. It shows painted graveyard sites in India. और जिसमें कि भगवानपुरा साइट है, ये आ गई हरियाणा से, और देन पानीपत इज ऑल्सो इन हरियाणा। Then these are the UP sites, some of the UP sites, Hastinapur, Aichhatra, and Jakhera and Mathura. तो ये कुछ जो है पेंटेड ग्रेवियर और ब्लैक एंड रेड वेयर रीजन मीन्स पॉटरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ पर पूरा ये सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में दिखाई देता है। एंड हियर इज जारवे कल्चर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र की कुछ साइड्स में जारवे कल्चर देखा गया। कंधार ग्रेव कल्चर, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान में है। तो हियर इज पिराक, Iraq on the west of Indus. It is Indus River on the west. In Baluchistan region, Iraq culture. Jangar culture is also first was it was in Punjab. Now it is Sindh. Now it is in Pakistan. So these are some sites of painted graveyard and also of some post or late Harappan sites. This was all about this lecture. Meet you in next lecture. Thank you everyone for joining these classes.